میں یہ بہت سے لوگ جو اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو پھر ہمارا راستہ نہیں نظر آتا. ہم ہر دن ایک دن عمر میں بڑھتے جاتے ہیں, ایک دن پریشانیوں میں بڑھتے جاتے ہیں, اور ایک دن قرضوں میں بڑھتے جاتے ہیں. ہوتا ہے مہینے کے آخر تک ہمارے پیسے ختم, کریڈٹ کارڈ چل رہا ہوتا ہے, اگر کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو ادھار چل رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام مشکلیں ہیں جو ہمیں فیس کرنا پڑیں گی. اور اس ٹینشن کی وجہ سے آج کا بچہ بھی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ فریش نہیں ہوتا. اس کو اسکول کا ٹینشن ہے, اس کو میڈم کی ڈانٹ کا ٹینشن ہے, یا اس کو پاس نہیں ہونا ہے, نہیں ہو نہیں پا رہا ہے, اس کا ٹینشن ہے, امی ابو کی ڈانٹ کا ٹینشن ہے, اور جلدی پیسے کمانے کے لیے کہ مجھے جلدی سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پیسے کمانے ہیں. اس کو اس بات کا ٹینشن نہیں کہ میں کیا لرن کر رہا ہوں, کیا مجھے فائدہ ملے گا. اس کو یہ ٹینشن ہے کہ ڈگری ملے اور کام پہ جاؤ. یہ تمام وہ سوچیں ہیں جو ہمیں ہر بار بڑی کسی نہ کسی فکر پر ڈالتی. پھر لائف اسٹائل چینج ہوتا چلا گیا. آہستہ آہستہ ہماری غذا نے ہیلدی غذا سے ہٹ کے نارمل انہیلدی غذا پہ تلاش کر لی. سستی ہو گئی. اب ہم کھانا نہیں بناتے, بچوں کے لیے الگ پہلے کھانے بنتے تھے, اب وہی ایک کھانا سب کے لیے چلتا ہے, یا پھر ہم باہر سے کھاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جتنے لوگ یہاں پر وداؤٹ فیملی ہیں وہ تو کھاتے ہی باہر سے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنا خود بنانے کی کوشش کریں گے. کون تھک کے رات کو 11 بجے آ کے کوکنگ کر لے گا, 6 درہم کے شاورما لے لو, ختم کہانی ہے نا. کچن کا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, 200 درہم کا ہی اس کے اندر. لیکن انہی چیزوں نے ہمیں کہیں نہ کہیں پیچھے ڈال دیا ان تمام پریشانیوں سے بڑھا کے. آپ دیکھیے نا, کوئی بھی شخص فارغ نہیں ہے. یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں سب سے بڑا دشمن بھی ہے, سب سے بڑا دوست بھی ہے. دشمن اس لیے کہ اس نے آپ کو آپ سے کاٹ دیا, آپ کو آپ سے کاٹ دیا. پہلے ہم شکل خراب دیکھتے تھے, کیا ہو گیا بھائی, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, راستے سے اب باتھ روم میں بھی وہی چلتی ہے. سارا اتنی دیر آپ نے باتھ روم میں اپنا پیٹ صاف کرنا ہے, اتنی دیر میں موبائل صاف کرنا ہے, آپ کو ڈیلیٹ کرنا تھا. اور اس گیجٹ نے آپ کو اوپن کر دیا. آپ ابھی بات کریں, میں نے کل بات کر رہی تھی کسی پلانٹ کی, میرا موبائل بند ہے, میں نے بات کر کے فون پہ رکھا ہے, میں اسے بات کر رہی ہوں, بات کر کے فون رکھا ہے, فون اٹھایا موبائل, 5 ایڈ آئے ہوئے تھے پلانٹس کے. اب آپ بتائیے کتنی تیزی سے یہ لوگ پک کرتے ہیں. اور وہ فون وہ ایڈز آ گئے کہ یہاں سے لے لو پلانٹس, یہاں سے لے لو. تو اس کا مطلب آپ اکیلے نہیں ہو, نہ آپ کی کوئی پرائیویسی ہے, نہ آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں. تو اتنی مونوٹنس, اتنی تھکا ہوا لائف اسٹائل سے آپ کیا چاہتے ہو؟ ایک لمحہ جو آپ کو نعمت کے طور پہ دیا گیا تھا, آپ اس کے لیے اپنی مصیبتوں میں مدافع کریں. رات کو سوتے ضرور ہیں لیکن چین سے نہیں سوتے, صبح اٹھتے ضرور ہیں لیکن فریش نہیں ہوتے. گڈ مارننگ کا سلوگن تو رکھا ہے لیکن کبھی مارننگ گڈ نہیں ہوتی ہے نا. اس کو گڈ کرنا ہے تو یہ ڈیکشن کرنا ہے. ہمیں اچھی عمر بھی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جب ہم کی اسٹیج پہ پہنچے, میں تو خیر بڑی نہیں ہونا چاہیے, یہ اگر کسی اسٹیج پہ آؤں تو میں نہیں چاہتی کہ مجھے پکڑ کے چلائے یا مجھے میرے کھانے کی پلیٹ میرے ہاتھ میں رکھے. ایک ڈیسنٹ ایجنگ پروسیس سے ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنی عمر جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ تھا نا, اگر 1 ہفتے کا ہے تو وہ لکھا ہوا ہے 1 week old. بیبی بھی اولڈ لکھا ہوا ہوتا. اب آپ اپنی ایج جنگ لکھتے ہو, مجھے بتاؤ 16 ایئر جنگ لکھا دے گا کہ نہیں؟ اب ہم لوگ پیشنٹ کی ہسٹری لگتے ہیں, how many years? 21 year old. You are old enough. The minute you are out of the body you are old. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر سیکنڈ میں آپ کے سیلز ٹوٹ رہے ہیں, نئے سیلز آ رہے ہیں, پرانے سیلز کو جگہ نہیں مل رہی نکلنے کی, آپ بیمار ہو رہے ہیں. اور اس ریزولوشن کو, اس ریولیوشن کو, جو زندگی کا ایک محور ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندر سے پریکٹس دی ہوئی ہے, وہ صاف کر رہی ہے, وہ نئے سیل بن رہا ہے. ایک خوبصورت سا ایک سسٹم ہے جو انسان بنا ہی نہیں سکتا. کروڑوں ٹریلینز آف سیلز ہیں جو ایک دوسرے کی سیوا کرتے ہیں. برابر والا کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پرواہ, ہمارے سیلز جو ہے نا وہ پرواہ کرتے ہیں. اگر یہ مر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کریں گے, اس کو اپنی طرف سے کھانا دیں گے, بچانے کی کوشش کریں گے.
बाकी शोधते आ जाएंगे WBC हमारे उसको मारने के लिए कि नहीं ये जो शैतान के अंदर केमिकल पॉइजन हो रहा है इसको बचाओ, नहीं बचाया वो मर गया, दूसरे पुलिस वाले आ गए उसको उठा के लिवर में ले गए और वहां जाके दम कर दिया। तो कब्रिस्तान भी मौजूद है अंदर और पैदाइश गाही भी मौजूद है अंदर, अंदर डिलीवरी रूम्स भी हैं और अंदर आपके शमशान घाट भी। तो कहने का मकसद ये कि जो अल्लाह का जो निज़ाम है उसको हम जब गलत सा लाइफ स्टाइल करते हैं ना, खाते पीते गलत, सोचते गलत, उठते गलत, टाइमिंग गलत, रात भर हमारे पास फोन है, जब तक आंखें जल ही जाते हैं उस वक्त तक फोन बंद नहीं होता, राइट? बच्चों के पास जाओ बेडरूम में तो सब लाइट बंद है, ब्लैंकेट के नीचे से लाइट जल रही है, क्या हो रहा है? तो गेम चल रहा है। मैंने खुद बच्चों को डांट डांट के पकड़ा है। क्या है कि ये एडिक्शन है, एक जहाँ आप छालिया, पान, तंबाकू, स्वाद, स्मोकिंग को एडिक्शन कहते हो, फोन इज द बिगेस्ट एडिक्शन। इवन फॉर दैट मैटर मीडिया, टिकटॉक पे लोग बैठ गए तो उठ के नहीं दे रहे, 50 वीडियो डाल दिए, खड़े कपड़ा पहन लिया 2 वीडियो, नाच रहे 2 वीडियो। भाई जिंदगी में कुछ मकसद रखो, पैशन रखो, दूसरों के लिए जियो, है ना? Yes. तो ये जो एजिंग प्रोसेस है ना, इससे हमें फरागत तो नहीं, छुट्टी तो नहीं मिले, लेकिन इसको हम अपने स्टाइल से मॉनिटर कर सकते हैं, इसको खूबसूरत बना सकते हैं और दवाइयों से और प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हेल्दी लाइफ फॉर एवरीवन, चाहे उसमें आपके पेट्स हो, चाहे उसमें आपके बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए और वो बच्चे जो पैदा हो चुके हैं, उन सब की सिक्योरिटी के लिए रिएक्शन के अंदर कुछ न कुछ मौजूद है, ठीक है? तो फिक्रात और एजिंग जहाँ तक हमारा लाइफस्टाइल जितना इफेक्ट करता है ना, वो किस तरह से इफेक्ट करता है कि हमारे सेल्स जो हमारे खलियां जिसको आप कहते हैं, उनके अंदर एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर आपके अम्मी अब्बू की जीन्स हैं, आपका जैसे कीबोर्ड है ना कंप्यूटर पे, इस तरह एक कीबोर्ड अम्मी की तरफ से, एक कीबोर्ड अब्बू की तरफ से आया हुआ है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जो उन्होंने दे दिया आपको कर रहे हैं। थोड़ा आपका स्टाइल चेंज हो गया तो वो काम नहीं हो गया। तो जो क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटीज हैं, जो हमारी डिजाइन, हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, वो हमारे क्रोमोसोम्स को मार देता है। और जब ये क्रोमोसोम खराब होना शुरू हो गए तो क्या हमारी याददाश्त और क्या कैंसर, क्या एलर्जी, सब चीजों में मुमकिन हो सकता है कि आप फंस जाए। तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से आप एजिंग प्रोसेस को भी आप डिक्लाइन कर सकते हो, आप बीमारियों से भी लड़ सकते हो और आने वाली जनरेशन्स को बीमारियों से रोक सकते हो। क्योंकि अगर आप हेल्दी है ना तो आपकी 3 जनरेशन हेल्दी होंगे। ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। अगर मैं सिगरेट खुदा पीती हूँ तो मेरा बेटा जल्दी सिगरेट पिएगा, उसका बेटा और उससे जल्दी सिगरेट पिएगा आम आदमी के मुताबिक। तो वो हैबिट जो है ना जीन्स में जाती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें नफ्सियाती बीमारियां पहले हमारे जमाने को इतना पुराना नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक छोटी सी चैप्टर हुआ करता था साइकोलॉजिकल डिजीजेस का, डिप्रेशन हो गए, उसको हम लोग पढ़ते भी नहीं थे। क्या बोल देते हैं, क्या करेंगे, क्या अगर कोई डिप्रेस हो गया तो क्या करेंगे, दवा दे देंगे सो जाएगा, काम से लेंगे, पैसे नहीं है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे पैसे देने पड़ेंगे, उससे बेहतर है भाई दवा देकर सुला दो, कोई इलाज नहीं था। अब डेवलपमेंट ऑफ सुपर स्पेशलिटी आ गई, साइकोलॉजिस्ट आ गए, साइकियाट्रिस्ट आ गए, नियोनेटल साइकोलॉजिस्ट आ गए, छोटे छोटे बच्चों में ADHD की जो डिसऑर्डर आना शुरू हुए, टेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, जिनमें बच्चे जो थे मुख्तलिफ थे, बहुत होशियार थे, लेकिन हर एक से बात नहीं करते। आपने नोट किया होगा कि ऐसे बच्चे सिर्फ अपने काम में लगे हैं, आवाज देते रहो सुनते नहीं। तो ये बीमारियां नहीं है, वो चीजें हैं जो हमने उनको तोहफे में दिए हैं। फिर कॉन्स्टेंट एनर्जीज, कंप्यूटर्स, रेडिएशन, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त कुछ ना कुछ रेडिएशन आपके माहौल में है और एक प्रेग्नेंट औरत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये सब चीजें अमंग ऑल द एलियंस, ये तमाम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्किन से लेके, आंख से लेके, ब्रेन से लेके, कहीं ना कहीं लाइलाज होते गए। एंड पे ये आया कि आप छोड़ दो, जाना है ना जान दो उसको, ऐसे ये वक्त आ गया। लेकिन ये सही नहीं है, इसको हम प्रिवेंशन पे ही जब काम करेंगे तभी हम बेहतर हो सकते हैं। अब माहौल को हम चेंज कर सकते हैं, कितना लड़ेंगे हम, आप तो फिर भी बहुत अच्छी जगह बैठे।
ملکوں سے ہم آئے ہیں ان ملکوں میں تو گورنمنٹ کام نہیں کرتی, ہمیں اپنے محلوں کو خود صاف کرنا پڑتا ہے, رائٹ. محلے کمیٹیز ہوتی ہیں, وہ کارپیٹ بچھا رہی ہیں, تو صفائیاں کر رہی ہیں, بکرے کی جو گندگی ہے, جو ماحول کی گندگی ہے 70% آپ کی سانس کی بیماریاں, آپ کی اسکن کی بیماریاں, آپ کے جگر کی بیماریاں ماحولیاتی آلودگی سے ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر پھر ہمارے تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں خوشی استعمال کرتے ہیں. ڈٹرجنٹ گھر میں آپ جس چیز سے صفائی کریں, کہنے کو فرسٹ چمک رہا ہے لیکن وہ کیمیکل پوائزن کینسر کرتا ہے. نئے گھر میں آپ جاتے ہو کتنی اچھی خوشبو لگتی ہے پینٹ کی, نئے کارپیٹ کی, نئی لکڑی کی, ایک فیسنیٹنگ فیلنگ ہوتی ہے. دیز آر آل ٹاکسنز. اب بائی ون گیٹ منی فری چل رہا ہے, ایک ایڈ لگ جائے گا بائی ون گیٹ ون فری, سب باقی جائیں گے. یہاں بائی ون گیٹ منی فری, کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم اسی میں لگے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس میں الٹرا وائلٹ ریز سے لے کے اور گاربیج تک ہر چیز نے ہمارے خلاف محاذ بنا دیا. تو ہمیں جنگ لڑنی ہے, ہر ایک سے جنگ لڑنی ہے. اب آکوپیشن کام کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, ہر کام کرنے کی اپنی مشکلیں ہیں. کنٹینیوس آپ میں سے کتنے لوگ 8 گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے ہو؟ کتنے لوگ 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں ایک جگہ دفتر میں؟ آفس ورک ہے, رائٹ. اس میں سے کتنی دفعہ اٹھ کے جاؤ گے, 5 منٹ کے لیے اٹھو گے, 10 منٹ کے لیے, وقت نہیں ملا تو کھانا مل گیا, رائٹ. باتھ روم نہیں جائیں گے کیونکہ ٹائم ضائع ہوگا, پانی نہیں پئیں گے کہ باتھ روم جانا پڑے گا. تو یہ تمام وہ آکوپیشنل ہیزارڈز ہیں. ٹریول کر کے جانا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے راستے میں, ٹینشن میں, دیر ہو رہی ہے, گھر سے نکلتے ہی اور پہنچنے تک آپ کی باڈی کا ٹراما کا برا حال, ٹھیک. تو یہ تمام ہڈن اینیمیز. اور بڑھ کر جو پوزیشن آپ کے کام کی آج سے 50 سال کے بعد ہم سب کی انگلیاں, اگر ہم زندہ رہ گئے, انشاءاللہ میں تو رہوں گی, آپ کو نہیں پتا, یوں ہوگا ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے نا, شکر آپ کے پاس ہولڈر ہے, اور اکثر لوگوں کے ہاتھ میں ایسا ہوگا آپ کا ہاتھ الٹا اور آپ کی انگلیاں یوں ہوں اور گردن یوں, کیونکہ آپ اسی پوزیشن میں رہتے ہیں 80%. تو آکوپیشن ہزار سے زیادہ ہیبٹ ہزار ہے. پھر آپ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس فیکٹری کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں. واٹر فیکٹری الرجیز, آئل فیکٹری پوائزنز اگین, ٹھیک ہے. ریڈیشن ایکسچینج ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہا ہے, مسلسل اس کو کینسر کرتا رہے. کسی جگہ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, سیمنٹ کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, آپ کو وہ سیمنٹ بھی نقصان کر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا اس کے عادی ہو گئے. تو یہ آکوپیشنل ہیزارڈز کی ایک پورا سبجیکٹ ہے. اب تو اسٹریٹجیکلی ڈاکٹرز اسپیشلسٹ آکوپیشنل اسپیشلسٹ الگ سے آ گئے, کیونکہ وہ اتنے ہیزارڈس سچویشن ہیں. ایگزیما, اسکن چینجز, آپ پورا دن دھوپ پہ کھڑے رہ کے کام کرتے ہیں, ساری اسکن جل گئی, بات ختم ہو گئی. ماں باپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا, بچہ تو پیسے کمانے گیا تو شکل ہو گیا ہے کہ نہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو آکوپیشنل ہیزارڈ ہیں, اور ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم نے اپنے ماڈیفائی کرنا ہے, اپنی چیزوں کو کر سکتے ہیں, کبھی کبھی نہیں کر سکتے. اگر مجھے خدا نہ خواستہ استما ہے, خدا نہ کرے, تو ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کو ماحول میں جو ڈسٹ ہے اس سے استما ہے, آپ جگہ چینج کیجیے, ٹھیک ہو جائے گا. میں اپنے ملک واپس نہیں ٹھیک ہو گئی, تو کیا میں نوکری چھوڑ دوں؟ کیا کرنا ہے مجھے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نوکری چھوڑو, جگہ کر لو, اگر زندہ رہنا چاہتے ہو وہ آکسیجن سلینڈر خرید لو. سلینڈر سستا ہے, نوکری مہنگی ہے. تو مجھے کچھ تو چاہیے ایسا جو میری سانس کو روا رکھے. تو مجھے میرے ڈیکسن نے کینوڈرما اسپائرولینا کارڈیسپس بطور آکسیجن سلینڈر کے دیا گیا. دس از ون آف دا بیسٹ ریمیڈیز فار آل دا الرجک کنڈیشنز جو آپ کی باڈی سے فائٹ بیک کر سکتی ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ فزیکل, مینٹل, سائیکولوجیکل اور فائنینشیل فٹنس کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے لائف اسٹائل کے اندر ہی نیند. ہم میں سے کتنے لوگ 8 گھنٹے سوتے ہیں؟ کام کرنے والا تو مشکل سے 8 گھنٹے سوتا ہے. دن میں تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رات میں سوتے سوتے آپ کو 1-2 بجیں گے, پھر وہ گھر سے فون کرنے پڑھائی ہو گیا. اور اگر کسی ایسے ملک میں جہاں ٹائم کا فرق ہے تو ہو گیا بڑا. امریکہ سے اگر آپ کو کال آپ کی فیملی امریکہ میں تو آپ رات کو بھی نہیں سو سکتے. کہنے کا مقصد یہ کہ نیند سے
ज्यादा कीमती चीज इस वक्त कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए दवा से तो आप नींद नहीं खरीद सकते। दिमाग सुन हो जाएगा लेकिन आप उठेंगे तो फ्रेशनेस नहीं होगी। नींद आती है जब आप फिट होते हैं, जब आपके सेल्स रिलैक्स करते हैं, आपको रात में जो हार्मोन मिलना चाहिए वो मिलते हैं। अगर आप रात का दिन और दिन को रात कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी नींद भी सही आपको फायदा नहीं देगी। तो स्लीप एपनिया नींद की खराबियां अपनी है। कुछ लोग जो थकते हैं, कुछ लोग जो सिगरेट स्मोक करते हैं, ऑक्यूपेशनली कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज है, वो रात को सो भी नहीं पाते क्योंकि उनकी सांस रुकती है। हम में से ज्यादातर लोग खराटे लेते हैं, है कि नहीं? Yes. आपका रूममेट जरूर चीखता होगा कि यार मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। क्यों? कि आप थक के सोते हैं और जब आदमी थक के सोता है तो जुबान उसके पीछे जाके सांस रुकती है, गड़बड़ से निकाल और इस तरह से उसकी डेथ हो सकती है। सिर्फ नींद की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से सोने में इंतकाल होता है। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से लेके और हमारी गज़ा तक सब चीजें, दिल की बीमारी हो, दिमाग की खराबी हो, स्ट्रोक्स होते हैं होता है। रात को जितने ज्यादा अटैक्स हमें डिजीज के होते हैं दिन में नहीं होते क्योंकि आपका दिमाग हटा बहुत होता है दूसरे कामों से। जॉइंट पेन रात में ज्यादा होगा, लेबर पेन रात में ज्यादा होगा, हार्ट अटैक रात में ज्यादा होगा। इन तमाम चीजों के लिए रात बेइंतहा इंपॉर्टेंट है आपको अपनी केयर करने की, ठीक है? फिर आइए आप नींद की खराबी, नींद ही नहीं आती, ये और डेंजरस बात है कि जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी एक न एक दिन थक के किसी न किसी बीमारी का शिकार हो। और कुछ नहीं तो एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, हेडेक्स, ठीक है? और फिर मिजाज की चेंज। नहीं, आपकी मिजाज इतना चेंज करेगा कि लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे। तो बात करो तो चिड़चिड़ा आदमी, ये नहीं पता कि उसकी नींद पूरी नहीं होती। इतनी छोटी सी चीज आपको कितना बुरा इंसान बना सकती है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स के फंक्शंस को चेंज कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसके लिए वक्त नहीं। तो क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता ले लें कि जो शॉर्टकट तो नहीं है लेकिन हमें उन रीजंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करनी। हमें डेस्टिनी चाहिए तो हमें एक सीधा रास्ता मिल रहा है, राइट लेफ्ट देखना ही नहीं। अब उठाओ खाओ इस्तेमाल करो और भूल जाओ। डायग्नोसिस की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ जनरेट नहीं है, आपके हर सेल की सेवा करता है। तो ये तमाम चीजें लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो हमने ये सोचा कि जब तक हम बचत नहीं करेंगे, इलाज तो बहुत महंगा है, इलाज से जान भी जाती है, केमिकल पॉइजनिंग भी होती है। तो अगर मुझे कैंसर करके कैंसर का इलाज ढूंढना है तो ये बेवकूफ़ी है। मुझे कैंसर को बचाने वाली चीजें ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे कैंसर हो ही ना। यहाँ तक कि अगर मेरी फैमिली में खुदा खास्ता कैंसर है तो मुझे ऐसी चीजें अपने अंदर इस्तेमाल में अपने लाइफ स्टाइल में डालनी पड़ेगी कि वो जो भूखा शेर मेरे अंदर चेन में है उसकी चेन ना खुले। जो अपनी जेनेटिक्स में मेरे एक जीन आई भी है कैंसर की, वो खुलेगी उसी वक्त जब मैं उसी तरह का लाइफ स्टाइल होगा जो मेरी माँ को था। मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं उस कैंसर से बच जाऊँ। इस एपिजेनेटिक कंट्रोल में हमारे 3 बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो जेनेटिक्स को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अल्लाह हैज गिवन अस दिस विजडम थ्रू डॉक्टर डेम जो आप तक पहुंचे। राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर। तो हमारा काम क्या है कि टाइम सेट करना है, अपने आप को तैयार करना है प्रिवेंशन के लिए। और प्रिवेंशन के लिए तो ये आप सब जानते हैं, लोग यहाँ बैठे हैं, they know all about this. I don't want to waste your time on this. कि डॉक्टर ने कैसे बनाया, क्या स्ट्रगल थी, हम सब उनकी कदर करते हैं। कदर करने की निशानी है कि हम उन जैसे काम करें जो वो सोचते हैं सबके लिए वो हम करें, तब तो फायदा है। वरना तो फिर वो पैसे का चक्कर है सब, है ना? पैसा सब कुछ नहीं होता। सुपर फूड्स को अपनी जिंदगी में डालना है, ये सबसे बड़ा हमारा प्रोडक्ट कैंसर। यस यस। आपका इम्तिहान कितने लोग कैंसर में इस्तेमाल करते हैं किसी भी शक्ल में, और कितने लोग 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 5 सालों में आप डॉक्टर के पास कितनी दफा गए? एक बार, ठीक है? और जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर गए भी होंगे तो थोड़े कम अरसे के लिए होंगे, राइट? तो क्या आपको ये लगता है कि ये मेडिसिन नहीं
یہ ڈاکٹر سے بھی سپر چیز ہے, کیونکہ بیمار ہوگے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. جب سیلز اپنے آپ کو خود ریپیئر کر رہے ہیں, اسکین کر رہے ہیں, کلین کر رہے ہیں, ڈیٹاکس کر رہے ہیں, ریجنریٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہماری باڈی کو ڈاکٹر بہترین بنایا. تو گینوڈرما ٹیکس کیئر. اب میں نے آپ سے بات کی بائی ون گیٹ ون فری. بائی گینوڈرما گیٹ 700 things free. واو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا آج سے 16-17 سال پہلے, تو اس وقت میرے خیال ہے 300 کے قریب انگریڈینٹس تھے. 412 ہو گئے, 500 ہوئے, 600 ہوئے, اب لیٹسٹ 700 پلس ہیں. شور اور پھر پڑھ گیا ہوں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے نا, اور الگ الگ کر کے لوگوں نے دوائیں بنانا چاہیے, تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے, ایک ساتھ میں ہونا چاہیے. مطلب بات یہ ہے کہ ایکتا انجن میں 4 فرینڈس ہیں, 4 فرینڈس مل کے ٹیبل کو اٹھاتے ہیں, 1 سیکنڈ ہو جائے گا. اب میں اس کو الگ کر دوں گی, چھوڑو میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گی, تم اکیلے اٹھا لو. اٹھائیں گی, چاہیے اس کو چاہ. تو اسی طرح گینوڈرما ان ٹوٹیلٹی ورکس بیٹر ایز کمپیئر ٹو سیپریشن آف اٹ انگریڈینٹس. کوشش کر رہے ہیں لوگ اس میں سے دوا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اسٹل دے آر unable to do it because they have to put lot of effort. کہ اس کو پرزرویٹو چاہیے, اس کے اندر اور کچھ چیزیں چاہیے, کہ اس کو ایسے ہی کر کے اب تک کامیاب نہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں جو ڈن کیا وہی بہترین ہے. تو گینوڈرما ایک ایسا فنگس جس کو کچھ کہتے ہیں 4000, کچھ کہتے ہیں 5000 سال پرانا ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا ایک حصہ, اور بادشاہوں نے کھایا, بادشاہوں نے منگایا. کیوں منگایا؟ اس لیے کہ ان کو پوائزن نہیں چاہیے تھا. آپ کو معلوم ہے پچھلے زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ فوج کو اور بادشاہوں کو ہوا کرتا تھا دوسری چیزوں سے, ہے نا. پوائزن کر دیے جاتے تھے, مار دیے جاتے تھے. تو ان کو جو بھی کھانا ملتا تھا نا, اس کو بھی ایک آدمی پہلے چیک کرتا تھا اور پھر انہیں کھایا جاتا تھا. تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ ڈیٹاکس کرتا ہے اور یہ پوائزن سے بچاتا ہے, تو وہ ان کا کھانے میں مشروط آنا شروع ہو گئے. اب ڈائنسٹی میں جائیں, آپ چائنیز ڈائنسٹی میں جو پکچرز آپ کو ملتی ہیں نا, اس میں پیچھے گینوڈرما کی پکچرز ملیں گی آپ کو. یہاں تک کہ ان کے مذہبی عمارتوں میں بھی فرش کے اوپر گینوڈرما کا پکچر آپ کو ملتا ہے, thousands of years back. تو دس از واٹ ریالٹی از. لیکن لوگوں کو پتا نہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ سے باہر ہی نہیں نکلتے. ہمیں یہ نہیں پتا برابر میں کون رہتا ہے. ہم 4000 سال کی بات کرتے ہیں, ہمیں پتا تمہیں برابر میں کون سا رہتے ہیں, کتنے رہے گا, اس میں سے کتنے چلے گا نہیں پتا. تو ہم کہاں سے کھدائی کرتے ہیں؟ ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں ہے. ہمیں بنا بنایا حلوہ مل جائے, شارٹ کٹ مل جائے چیز کا, کھانا ملے, پکا پکائی مل جائے, کپڑے ملے استری کیے مل جائے, سل سلائی کپڑے. اپنا کوئی کپڑے سیتا ہے نہ کوئی سلواتا ہے, جاتے ہیں خرید لیتے ہیں. ہر چیز کی شارٹ کٹ ہے, لیکن صحت میں شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. 3 چیزیں: ڈائٹ, لائف اسٹائل, ایکسرسائز. اور پھر ان ڈائٹ میں جو چیزیں ہیں, ہم نے سپر ڈپر ہمارا سپر فوڈ گینوڈرما. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں, اٹس اے ویری کمپیکٹ سلائڈ جو پوری ڈیٹ سے کے جو تمام کام باڈی کے اوپر ہے, یہ اس کو سمرائز کرتا ہے. کس طرح انڈیویجول سسٹم کے اوپر گینوڈرما کے کیا کیا اثرات ہیں. اگر آپ اس کو سوجن ورم, درد کی وجہ سوجن ورم, انفلیمیشن, اس کو کیسے کم کرتا ہے, آرتھرائٹس کو کم کرتا ہے, الزائمرس کو, نیچرل پین کلر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کافی پیتے ہیں تو آپ کے سر کا درد کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹائرڈنس کم ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر نیچرل پین کلر سبسٹینس ہے. کارڈیک ٹراما, بلڈ پریشر کو کم کرنا, کم بلڈ پریشر کو بڑھانا. ایڈیپٹوجن ایک ایسا پروڈکٹ جو جیسا دیش ویسا دیش کے بنیاد پہ کام کرتا ہے. کیسی ضرورت, شوگر بڑھے گی کم کرے گا, شوگر کم ہے اس پہ آپ کے توڑ پھوڑ شروع ہوگی اور شوگر بلڈ میں آنا شروع ہو جائے گی. نو میڈیسن کین ڈو دس. اٹس اونلی اے فوڈ وچ کین ٹائٹریٹ دا نیڈز آف یور باڈی. اسی طرح کولیسٹرول. کولیسٹرول ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول ایک برا نام ہے, لیکن ہماری پورے جسم کی صحت اچھے کولیسٹرول کی کوانٹٹی پہ ہے اور کوالٹی پہ ہے. گڈ کولیسٹرول اگر نہیں ہے تو آپ کا دل بھی نہیں دھڑکے گا. کول مینز لیور, اسٹرول مینز ایک کیمیکل بینزین رنگ جس سے آپ کے ہارمونز بنتے ہیں. اگر آپ کے ہارمونز نہیں بنے تو آپ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے. تھائرائڈ نہیں بنا تو آپ تو سانس بھی نہیں لے سکتے.
ٹھیک ہے, ایڈرینلین نہیں بنا تو آپ ہنس بھی نہیں سکتے, رو بھی نہیں سکتے, آپ ڈنگ ہیں. اگر آپ کا تھائرائڈ فنکشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی باڈی پوری گئی کام سے, اور یہ سارے ہارمونس جو ہیں وہ اس بینزین ڈرنک سے جو لیور سے آ رہا ہے اس سے بنتے ہیں. تو آپ سوچیے کتنی ضروری چیز ہے. لیکن اس کی کوالٹی, گڈ کوالٹی کولیسٹرول کو چوز کرنا, اس کو اسٹور کرنا, یہ ہماری باڈی کی بہت بڑا کام ہے. اور اس کا کام اگر یہ غلط ہو جائے تو یہی کولیسٹرول آپ کے لیے ہارٹ اٹیک, اسٹروک, یعنی آپ کے تمام رگوں کو چھوٹا کر دیتا ہے, سکیڑ دیتا ہے, خون کی سپلائی کو کم کر دیتا ہے. تو گڈ کوالٹی کولیسٹرول کو بہتر کرنا اور بیڈ کوالٹی کولیسٹرول کو کم کرنا, اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. تو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے صحیح طریقوں پر پینگرما کام کرتا ہے, بٹ ناٹ ان ون ڈے, بیکاز اٹ از ناٹ اے میڈیسن. میڈیسن ہم ابھی کھاؤ گے پینگرما پرسسٹنٹلی کھاؤ گے تو آپ کے درد کی شدت میں کمی ہوگی, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چیزیں آپ کو درد بھی نہیں دیں گی. آرتھرائٹس پڑا ہے آپ کی باڈی میں, لیکن آپ چونکہ ریگولر گینوڈرما لے رہے ہو تو آپ کو درد نہیں کرے گا, سوجن نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ایجنگ پروسیس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ڈیفائن کریں گے. پھر 1977 سے آنورڈس کینسر کی ریسرچ بہت تیز ہو گئی, اور لوگوں نے بریسٹ کینسر, پروسٹیٹ کینسر, لنگ کینسر کے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو وہاں تھائز, جاپنیز, چائنیز, کورینز نے بھی کیا. پرابلم یہ آئی کہ ان لوگوں نے اپنی زبان میں کام کیا. تو برٹش, امریکنز, جرمن, ان لوگوں نے, جرمن نے اپنی زبان میں کام کیا, لیکن پھر بھی لوگ انگلش میں کنورٹ کرتے تھے. ان لوگوں نے اپنی سائنس کو دنیا تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ ان کی لینگویج کے ڈفرینسز تھے اور انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی نہیں کیا. کچھ لوگوں نے ہمت کی اور 1980s میں 1990s میں آ کے یہ ریسرچ ایک بلاسٹ کی طرح سامنے آئی کہ کینسر کے خلاف اور انفلیمیشن کے خلاف, جگر کی بیماریوں کے لیے, دل کی بیماریوں کے لیے گینوڈرما آرٹیکلز آنا شروع ہو گئے. اب اس وقت 4000 آرٹیکل سے زیادہ آپ کو گینوڈرما پہ ایکسلنٹ ورک ملے گا لوگوں کا جنہوں نے ایک ایک انگریڈینٹ پہ کام کیا ہے. جو تمام انگریڈینٹ اس کے پولیسیکرائڈ, ٹرائیکربونائڈ, گیلوریک ایسڈ, کون سا پروڈکٹ کیا کام کرتا ہے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آم کھاؤ, پیڑ مت گرو. Yes. وہ لوگوں نے کام کر دیا, اب آپ اپنے مزے رہو اس کے. ٹھیک ہے, جو چیز پتہ لگی اس سے فائدہ اٹھائیے. پھر الرجی, اس وقت میرے خیال اس ہال میں 10% تو لوگ ہوں گے جن کو کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہو, اور کچھ نہیں تو ہوا سے, ڈسٹ سے, لیدر سے, سنتھیٹک چیزوں سے, میک اپ سے. میک اپ تو سب سے زیادہ آپ کے لیے پوائزن. ایک ایسا بھی لیٹسٹ آرٹیکل میں 2-3 دن پہلے پڑھ رہی تھی, میں نے کوشش کی اس میں ڈالنے کی, لیکن وہ بہت بڑا تھا. جو لپسٹک, میک اپ یہ ہماری بہنیں استعمال کرتی ہیں, اور یہ سچ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, سائنٹسٹ کہتے ہیں. پھر اسی طرح عام غذا سے بھی الرجی ہو جاتی ہے. آپ ایک آدمی مچھلی سے الرجی ہوگی, اس کو انڈے سے الرجی ہوگی, بھائی اور کیا کریں. تو آپ کی باڈی میں جو الرجیز کو فائٹ بیک کرنے کے لیے اینٹی الرجک ماحول ہے, وہ دوا سے اگر آپ لوگے تو 2 دن سو جاؤ گے. جتنے اینٹی الرجک ہیں ہم سارے سے لے لیں, ٹھیک ہے, اور ان کی دوسری دواؤں کے ساتھ انٹریکشن ہے. میں یہ نہیں کہتی مت کرو, ایمرجنسی ہے, لو اسٹیرائڈ بھی دینا پڑتا ہے کبھی کبھی الرجی میں جان بچانے کے لیے, لیکن وہ ایمرجنسی میجرس کے لیے ڈاکٹر آتے ہیں. اور لانگ ٹرم بینیفٹس کہ آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے خاندان کو الرجی نہ ہو, اس کے لیے اگر آپ کو گینوڈرما تھوڑا تھوڑا اپنی باڈی میں ڈالتے رہو تو آپ کی باڈی ان تمام کیمیکلز کی وجہ سے آپ کو سیف رکھے گی. اور یہ وہ کیمیکل ہے جو نیچرل ہے, کسی انسان کی محنت نہیں. ٹھیک, پھر آئیے آپ کی سوچ, آپ کی شخصیت, آپ کی پرورش جو آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے, ایک بڑا انسان بناتی ہے, وہ سب سے بڑا امپیکٹ رکھتی ہے. آپ نے بچپن میں کیا دیکھا, آپ کے دوست کیسے تھے, آپ کی تعلیم کس ماحول میں, اس سے آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا, پالنے والا زیادہ بڑا ہے پیدا کرنے والے سے, تربیت کے حساب سے. تو اسی لیے اسپرچل ہیلتھ کے اوپر کسی نے بھی کام نہیں کیا. شخصیت کی تعمیر کے لیے, کسی پرسنالٹی کو اچھا بنانے کے لیے ماں باپ کیا کوشش کرتے تھے, چبی بیبی ہو جائے, چھوٹا سا بیبی کو انگلوں میں بھی اچھا لگتا ہے, پنک پنک ہو, اینیمک نہ ہو, بیمار نہ, بس اتنا کافی ہے. وہ کیا سوچ رہا ہے,
वो किस तरह बिहेव करता है सोसाइटी में, इसकी कोई तरबियत नहीं है। और हम लोग अपने अपने मजहब से बहुत दूर हैं। हमारी खराबी वहीं से शुरू हो गई कि हम ऊपर वाले से ज़्यादा दुनिया के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुरू हो गए। वो पर्सनैलिटी हमारी स्पिरिट्स को, हमारी रूह को जख्मी करते थे, जिसका इलाज दवा में नहीं है। इसका इलाज अच्छे लोगों में, अच्छी तालीम में, अच्छी सोहबत में और अच्छे इफेक्ट्स को लेने में और देने में। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर है। जब आप देते हो ना, तो साइंस ये कहती है कि आपके ब्रेन से एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो मार्केट में अगर दवा बन के आ जाए तो $300 पर बॉटल में बिकता है। तो आप सोचिए कि सिर्फ किसी की मदद करने से या किसी को काम करके जो खुशी होती है ना आपको, किसी आप मैं नहीं जानती आपको, मैंने आपको रास्ता बता दिया, मैंने आपको रोड पर पार करवा दी, मैंने आपसे कोई अच्छी बात बता दी, तो ये जो आपकी अच्छाई है ना, साइंस और गिविंग के नाम से यूट्यूब पे एक वीडियो मौजूद है, उस पर आप जाइए, उसमें पूरा उन्होंने साइंटिफिक डेटा ब्रेन का निकाला है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं किसी और के लिए जिसमें आपकी जात शामिल नहीं होती, तो आपका ब्रेन कैसे काम करता है। यू बिकम अ वेरी गुड पर्सन। और आज उसी की कमी है, सब कुछ है, ऐसा है, शोहरत है, दौलत है, अच्छे इंसान नहीं है ना, डिवोशन नहीं, केयर नहीं। अभी आप कोर्ट पे उठा के देखिए, एक दिन में 280 डिवोर्सेस होती है कराची में, एक दिन में। अगर आप उसकी बुनियाद पे जाएं, एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा अभी तुम्हारी शादी को 2 महीने हुए, तुमने डिवोर्स आंटी वो खराकी बड़े जोर से बोला। आपकी कसम, अब सोचो, बर्दाश्त इतनी नहीं है कि शौहर से लाठी ले रहे तो आप तलाक ले लो। मेरा तो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। उस सीक्रेट को मुझे शादी से पहले नहीं पता था। अब तो सब लोग लव मैरिज के आदमी, हमारे जमाने में हुआ करते थे अरेंज मैरिज। अब तो आप पहले पकड़ते, बाद में करते, सही है ना? यस। तो अब जब पता है उसके बावजूद भी क्यों हो रही है डिवोर्सेस, क्यों? कि बर्दाश्त नहीं होती, पेशेंस नहीं है। हम इंसान को एज इज नहीं लेते, हम उसको एक समझते हैं कि वो बेहतरीन चीज है जो कुछ हमारे सामने, वो गलती तो कभी करेगा ही। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि ये आपकी स्पिरिचुअल पोटेंसी को साइड करती है। हाउ योर स्पिरिट्स बिहेव व्हेन यू आर बिहेविंग विद। और ज्ञान ब्रह्मा आपको साइकोलॉजिकली स्टेबलाइज करता है। अपनी बातचीत में यही कहती हूँ, मेरा बस चले तो तमाम ये सो कॉल्ड हुक्मरानों को जगह खड़ा करूँ और सारा दिन सिर्फ इनको कॉफी पिला दूँ, 10-15 दिन ज्ञानों को कॉफी पिला दूंगी, फिर देखती हुई कैसे लड़ते हैं। क्योंकि एक बीमार जहन बीमार बात को इम्प्लीमेंट करता है, और जब सोच की खराबी पैदा होती है ना, तो फिर लेट गो नहीं होता, आप उसको दफा नहीं करते, आप उसको पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जो कि फिर आपकी भी जिंदगी खराब, उसकी भी जिंदगी खराब। तो ये जो मॉडर्निटी आपकी पोटेंशियल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये दवा से नहीं आता, ये आपकी साइकिल से आता है। जब साइकिल ठीक होगी तो आपका इंसान भी ठीक होगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो दिस इज व्हाट पैनोरामा की स्पेशलिटी है, ये कि आपको स्किन तो खूबसूरत देगा, बीमारी से बचत देगा, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पैनोरामा। सेकेंडली, तमाम जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें खाने पीने का, कहते लोग ये हैं कि ब्रेन से बड़ा ब्रेन जो है वो आपकी आंतें हैं। अगर आपकी आंतें ठीक हैं तो आपकी बॉडी ठीक है, क्योंकि जो भी आप कुछ खाते हैं वो अगर एब्जॉर्ब होगा तो फायदा करेगा, नहीं एब्जॉर्ब होगा तो ड्रेन पाइप की तरह चला जाएगा। दवा हो, ग़िज़ा हो, फायदा उस वक्त करेगी जब वो हजम हो। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के तमाम प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव एरर्स को ठीक करता है, जहां सोडियम की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, चाहे वो यूट्रस है या वो टेस्टिस है, वहां फायदा करता है। और फिर जो बढ़कर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर बढ़े तो कम करे, कम हो तो बढ़ाए, यानी कोई भी सेल अपना रास्ता भटक जाए तो उसको वापस रास्ते पर लेके आए। वो एक ऐसा गाइड जो माँ और टीचर की तरह काम, जैसे माँ अपने बच्चों को अलग नहीं देख सकती, इसी तरह ज्ञान पूरी बॉडी को स्क्रीन करता है, और जो सेल गलत काम कर रहा है उसको थप्पड़ मार के सही करता है। उस थप्पड़ का जो इफेक्ट होता है कभी कभी, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस। आपने नोट किया होगा कि अक्सर लोग जो
कैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं तो 1 या 2% लोगों को कुछ चीज़ें एग्जैजरेट कर जाती हैं, कभी मछली होगी, कभी घबराहट होगी, कभी दाने निकल आएंगे। ये वो निशानियां हैं के अंदर जाएंगी, कुछ ना कुछ चीज़ आपके अंदर गलत थी तो कैनोडर्मा ने सही करना शुरू कर दिया। तो डोंट बी स्केयर्ड, इट इज क्लेंजिंग ऑफ योर बॉडी इट इज हैपनिंग। जस्ट इंक्रीज योर वाटर, इंक्रीज योर कैनोडर्मा एंड इट विल बी ऑलराइट। ठीक है। उल्टा दवा में क्या होता है, साइड इफेक्ट होगा, फौरन बंद करो, मर जाओगे। इसमें नहीं होता ऐसा, कोई ऐसा साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलता, इंटरेक्शन मिलता है। अब दूसरी बड़ी चीज आपके अंदर भी है वो लिवर। जो भी चीज आप खाते हैं उसमें से काम की चीज तो चलती है खून में, जो बेकार चीज है वो या तो मोशन में, यूरिन में, पसीने में, आंसू में, कान के वैक्स में, मुंह के लुआब में, यूरिन में चली गई। जो चीज हमें प्रिजर्व करवानी है अल्लाह ने, वो लिवर में चली गई। अब लिवर तो एक आपका वेयर हाउस हो गया, कब तक करेगा? 100 साल, 50 साल। हम लोग क्या करते हैं, गलत ग़िज़ाओं से, गलत लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से लिवर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाता है और फिर लिवर अपना फंक्शन छोड़ देता है। आपने सुना होगा लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो उस लिवर को भी स्ट्रेंथ चाहिए अपना काम करने के लिए। तो कैनोडर्मा लिवर के लिए भी टॉनिक, किडनी के लिए भी टॉनिक, यानी आपको नॉर्मल रखने के लिए एक पूरे फौज का काम करता है एक अकेला। तो इसको अगर समझ लें तो फिर आपको कुछ परेशानी होगी, क्योंकि फिर आपको लगेगा नहीं कब होगा, कैसे होगा, बस आप अपना इस्तेमाल करो, बाकी छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी क्लीन होती चली जाएगी। तो क्यों दवा नहीं है? इसलिए कि दवा एक चीज पे काम करती है, एक डिजीज पे काम करती है। बच्चे की दवा बड़े को नहीं दे सकते, बड़े की दवा बच्चे को नहीं फायदा करेगी। दूसरी बात, बल्कि उसको नुकसान कर देगी, मर जाएगा वो, थोड़ी भी डोज आएगी कोई मुश्किल हो जाएगी, अलग चीज हो जाती है। एक मर्ज की दवा दूसरे को नहीं दे सकते। क्या शुगर की दवा ब्लड प्रेशर में दोगे? नहीं, ये कुछ बात है ना कि सर तो नहीं। या अगर मुझे स्किन की कोई प्रॉब्लम है, मेहंदी की दवा दोगे? नहीं। तो दवा मखसूस होती है, कुछ दिन के लिए होती है, आपके वजन, आपके कद, आपके जेंडर पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ तो हम कह रहे हैं सब खाओ, तो इसलिए ये दवा से बेहतर है, सुपर डुपर। क्योंकि पूरी बॉडी को नॉर्मलाइज करेगी, बॉडी उस डिजीज को धक्का मार के निकालेगी। ठीक है, इसको टाइम लग सकता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये कभी कभी साल, कभी 2 साल लग जाता है। इसके साथ साथ अब हम कैसे इस्तेमाल करें? हम को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर पाउडर की शक्ल में आपके मुल्कों में अगर आर्टिफिशियल कैप्सूल्स हैं तो 1 पेड़ से लेकर 10 पेड़ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मुल्कों में पाउडर है तो 1 चमचे से लेकर 3 चमचे तक उसको नॉर्मली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर नहीं तो हम उसको कॉफी पी लें। उसकी कॉफी नहीं पीना चाहते तो कोकोजी पी लें, कोकोजी नहीं पीना चाहते तो लेमन टी पी लीजिए। बहाना कोई नहीं चलेगा, हर चीज हमने रखी हुई है। ये नहीं है तो ये करो, ये नहीं है तो ये करो, कुछ नहीं है तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करो। यस, साबुन तो करना ही करना है। ग्रोसरी चेंज करो, ग्रोसरी चेंज करो, कारपोर से लेने के बजाय डीक्स एंड ग्रोसरी स्टोर से लो। यस, दिस इज व्हाट यू गेट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर बॉडी, फॉर योर फैमिली। अब आप अपने लिए नहीं सोचो, अब आप आते हो इस मुल्क में, कितने लोगों की फैमिली अपने घरों में है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 99%। हाँ, पैसे कमाने आए हो ना, तो अपने आप को तो ठीक रखना पड़ेगा। फिर अगर आपके बच्चे बीमार, माँ बीमार, वहाँ पर आपको पैसा जो खाने के लिए था वो उनकी सेहत के लिए चला गया, तो आप चाहते हो कि वो बीमार हो? नहीं। अगर आप 5 लाख महीना डॉक्टर को दे रहे हो किसी बीमारी के लिए और आप 10,000 महीना में उनको डॉक्टर से बचा लेते हो, तो क्या सस्ता सौदा नहीं है? यस। आदमी बोला मुझे लगता है किसी को समझ में नहीं आएगी। कहने का मकसद ये है कि हमें जो सामने नजर आता है ना उसकी परवाह करते हैं, जो पीछे है ना वो नहीं समझ में आता। यस, वो नहीं समझ में आता। अगर हम उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें, आज से 5 साल बाद अगर हम बच गए इसराइल के बॉम्ब से, हाँ, अगर बच गए तो हमें घर वापस जाना है। जब वापस जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? बूटी हड्डियाँ, आँख पे चश्मा, से बंदी, और जो प्रोविडेंट फंड था वो भी निकाल दिया, सारे डॉक्टर को पैसे देने।
बचत तो यहाँ पे तो किसी चीज की है नहीं। अभी कैपिटल टैक्सेस बढ़ गए, किराए बढ़ गए, तनख्वाह नहीं बढ़ गई, ये सब चीजें बढ़ गई। तो वो सिस्टम अलग है, उसकी तरफ हम बाद में मैं उससे बात ही नहीं करती। लेकिन अगर आप थोड़ी सी देर के लिए सोच लो कि तुम्हें सिर्फ आज ही में जिंदा रहना है, कल का तुम्हें नहीं पता, ठीक है? तुम कैसे जिंदा रहोगे? जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इस्तेमाल करोगे, जितना तुम अच्छा कर सकते हो दूसरों के लिए करोगे, ताकि तुम जाओ तो सुकून से जाओ। सही? ये कर लो, बस सिर्फ ये कर लो कि तुम अपने लिए अच्छा कर लो, अपने माहौल के लिए अच्छा कर लो, अपने दोस्तों के लिए अच्छा कर लो। मत डरो किसी को सच बात बोलने से। तुम्हारे सामने कोई गलत खा रहा है, गलत बोल रहा है, गलत पहन रहा है, रोको उसको। एक दिन लड़ाई होगी, दूसरे दिन वो आपकी कदर करेगा। जब वो मुश्किल में पड़ेगा तो वो यकीनन इस बात पे याद करेगा, देखो उसने मुझे बताया था, मतलब ऐसे वो जरा सी बात पर बरसों के हैरान नहीं गए, ये तो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचान नहीं गए। तो अच्छी बात करने में डरना नहीं चाहिए, अच्छी बात करने में आप 1 मिनट में आपके दोस्त और 1 मिनट में दुश्मन बनने में देर नहीं होती। बेहतरीन दोस्त वो है जो आपके मुंह पे आपको बुरा भला कहे और आपको सही करे। अच्छा दोस्त आपको बैठ करके चला जाए, आपकी बुराइयों पे पर्दा डाल दे, आप शराब पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, वो खुद भी आपके साथ में आ रहे, अच्छा दोस्त नहीं है, समझिए। इसी तरह अगर आप खुद पी रहे हो कॉफी, अपने दोस्त को ऑफर करो कि यार ये देखो, इसमें तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हे बढ़ जाएंगे, गिफ्ट कर दो। हम हर एक को गिफ्ट करते हैं। गुरु साहब ने फरमाया कि खुशबू और किताब गिफ्ट किया, किताब का मतलब इल्म। अगर आप किसी को ये नॉलेज दे देते हो कि तुम्हारी ये सेहत के लिए जरूरी है, तो तुमने एक नेक काम कर दिया। माने ना माने या बॉल उसकी कोर्ट में, तुम्हारा स्ट्रोक चालू चले, जीत पे तो आएंगे, फिर वो कभी ना कभी उस स्ट्रोक को दोबारा आगे सोचेगा। आज नहीं कर मेरी दोस्त 16 साल के बाद अब मुझे फोन कर दिया, मुझे रिएक्शन का बताओ थोड़ा। मैंने कहा 16 साल पहले मैंने कॉफी पी थी तुम्हें, कुछ ले जाने में मुश्किल होती है। मैंने कहा यह बात गया। कहने का मकसद ये कि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। आपका काम है बताना, आपका काम बस यही है कि बताए जाओ, सुनते हैं ना, ठीक है? अब ये दूसरी सहेली हमारी टीम, तो हमने बात कर ली। क्वीन हमारी है स्पाइरुलिना, बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड। ये एक चीज है जिसको मैं कहती हूँ, हाँ ये किचन को बंद कर सकती है। स्पाइरुलिना और माइक्रोवेव, ये दो चीजें आपके किचन की जरूरत खत्म कर देती है। क्यों? इस पर आप जिंदा रह सकते हैं। एस्ट्रोनॉट जब स्पाइरुलिना खा के महीनों पर जिंदा रह जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? पानी और स्पाइरुलिना, बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड। जो आप सोच सकते हो वो इसके अंदर है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट, जो चीज आपको जरूरत है। फैट कम है, प्रोटीन ज्यादा है, इसलिए हर चीज आपकी बॉडी की बिल्डिंग को तैयार करता है। हार्मोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके नाखून, आपके बाल, हर चीज को स्पाइरुलिना चाहिए, ठीक है? दिस आपके विटामिन्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स, इसके अंदर परफॉर्मेंस से लेके यानी खाल से लेके बाल तक और ब्रेन से लेके और आपके लिवर तक जो प्रोटीन्स की जरूरत आपको सेहत के लिए है वो मौजूद है। इसका जो असेसमेंट किया यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ फूड साइंसेज ने, उन्होंने कहा भाई 1 किलो स्पाइरुलिना लो तो वो बराबर है 1000 किलोग्राम ऑफ असॉर्टेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। कंपैरिजन आप देखिए तो आपको तो सिर्फ 250 के 2-3 टैबलेट्स आएंगे, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द नेचुरल फूड। इसके लिए फूड एक्सचेंज के फॉर्मूले मौजूद हैं, ये सब कुछ आपको नेट पे मिल जाएंगे स्लाइड्स। लेकिन विटामिन ए की तादाद इतनी कि आई चेक आपको ठीक हो जाएगी। मेरा चश्मा उतर गया, तो अब मैं 16 साल से खा रही हूँ, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। पहिला से चेहरा भी अच्छा हो रहा है मैडम, पहिला से चेहरा भी अच्छा है अभी और जवान लग रहा है। माशाल्लाह। देखो इंसान ये डिप्रेशन में इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो जब आप अंदर से खूबसूरत हो तो आप ऊपर से खुद खूबसूरत हो जाते हैं। मैं
शक्ल को आपके दिल से देखेगा। इतना प्यारा आपका दिल होगा, इतनी प्यारी आपकी सोच होगी ना, उतने प्यारे इंसान होते हैं। फिर आपकी नाक कैसी है, दांत कैसे हैं, ऐसे कोई नहीं पड़ता। जो लफ्ज आपके मुंह से निकलता है वो किसी को स्मूथिंग इफेक्ट देता है, किसी की मदद करता है, तो वो आपके दिल देखिए कैसा दिन बटा होगा। हसीन तरीन लोगों को मैंने अकेले मरते हुए देखा है, अमीर तरीन लोगों को मैंने सिसकते हुए देखा है ओल्ड होम में। 25 दिन चले गए, कैसा चाहिए उनको? Yes. राइट Right, तो right. जो आपकी जो शख्सियत है ना, वो वही बात करती है स्पिरिट्स की। अगर आपका दिल अच्छा है तो आपका मिजाज अच्छा है, आपका मिजाज अच्छा है तो आप अपने से पहले कुछ नहीं खाना सोचोगे, ठीक है ना? तो खिलाओ अच्छा, देखो अच्छा। गांधी जी तो कह के चले गए, लेकिन बेचारे गांधी जी की सुनी किसी ने? सारे पैगंबरों ने यही कहा, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, धोखा नहीं दो, और सब वो चीजें छोड़ते चले गए। झूठ बोल के बिजनेस होता, खाने का बिजनेस झूठ, दवाइयों का बिजनेस झूठ, मेडिसिन का बिजनेस झूठ, तो फिर कैसे उन चीजों में अपना बरकत दे सकता है? ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो प्रेशियस हैं और हर चीज कुदरती तौर पे आपको मिलती है, वो बहुत कम लोग सच्चाई के साथ आपको शेयर करेंगे कैसे इसको ऐसे निकालो। जैसे स्पायरलिना को आपके दिन का किडनी का फंक्शन प्रॉब्लम है, जहाँ डॉक्टर मना करते हैं प्रोटीन मत लो, 5 स्पायरलिना कम कर दो। वरना मैंने अपने वालिद को पूरी बोतल भी खिलाई एक दिन, 120 टैबलेट्स इन अ डे। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम था, हीमोग्लोबिन बढ़ाना, यूरिन ग्रीन हो गया, मोशन ग्रीन हो गया, पसीना ग्रीन हो गया। अल्लाह का शुक्र है, he's alive and well, 96 now. So you can imagine the beauty of this story. चश्मा नहीं लगाते, कोई दांत टूटा हुआ नहीं, सर पे बाल पूरे, और 3 किताबें लिख चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी हिफाजत करोगे तो देर तक चलेगी। यस, हिफाजत नहीं करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये सब हमारे हिफाजती टूल्स हैं। अब तीसरा जो हमारे पास है वो है मॉर्निंग नोनी फ्रूट जूस। ये पूरी दुनिया नोनी फ्रूट को जूस को अपने फ्रिज में रखती है। जो लोग अपने आप को खूबसूरत देखना चाहते हैं, इसके लिए, मैदे के लिए, दिमाग के लिए, आर्थराइटिस के लिए, यू नेम इट, इट हैज इट। 5 किताबें लिखती लोगों ने। प्रोफेसर नील सॉल्टन कहते हैं एक जगह पानी रखो, एक जगह नोनी जूस रखो, तो मैं नोनी जूस लूंगा। Yes. इसके पानी पीने से प्यास मिलेगी, नोनी से मुझे 101 बीमारियों से निजात मिलेगी। कैंसर के खिलाफ चीजें हैं। पेन किलर बहुत कड़ी है। पीरियड का पेन हो, लेबर पेन हो, हाथों का पेन हो, जॉइंट्स का पेन हो, मॉर्निंग वन ऑफ द बेस्ट पेन के लिए। इम्यूनिटी तो सभी के सब जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। कार्डियक कंडीशंस में, ब्रेन फंक्शन में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में, पूरे सिस्टम, चाहे वो बोन का हो, स्किन का हो, हार्मोन्स का हो, रिप्रोडक्टिव इलनेस हो, मेल प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम, मॉर्निंग बेस्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके साथ आपका दोस्त हमारा कॉर्डिसेप्स, Yes. स्टैमिना प्रोड्यूसिंग कॉर्डिसेप्स। सी याद है ना? सी का मतलब सर्कुलेशन, जहां जहां खून वहां कॉर्डिसेप्स। माइक्रो सर्कुलेशन से आप जिंदा हैं, ऑक्सीजन से आप जिंदा हो। कहां से आ रहा है? माइक्रो सर्कुलेशन। लंग में कैसे जा रहा है? सर्कुलेशन। किडनी कैसे काम कर रही है? सर्कुलेशन। ब्रेन कैसे काम कर रहा है? सर्कुलेशन। जहां आपको ऑक्सीजन चाहिए वहां आपको सही है। किडनी, ब्रेन, लिवर, आईसाइट, ईयर, हार्ट, हर मसल में जो बारीक रगे, ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए, स्ट्रोक से बचाने के लिए, कॉर्टिसोल किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर सबसे बढ़ता है इन्फर्टिलिटी, क्योंकि सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, तो वो दोनों इन्फर्टिलिटी, मेल फीमेल दोनों में हेल्प करेगा। वो सब चीजें एंटी तो है ही है सारी की सारी। फिर रेगुलेशन, सर्कुलेशन फंक्शन, जैसा मैंने बताया कि माइक्रो सर्कुलेशन, चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो, रेस्पिरेटरी हो, सब में कॉर्टिसोल का बेहतरीन रोल है। माइंड में लाइंस में, छेद के बालों का गुच्छा। दुनिया में कोई दवा, कोई गजा नहीं है जो आसाब को, जो आपके केबल्स है ना ब्रेन के, उनको रिपेयर कर सके, सिवाय लाइंस में। इसके अंदर एक है नर्व ग्रोथ फैक्टर, तो आपकी
की नई नसों को बनाता है और पुरानी ग्रंथों को रिपेयर करता है। तो जो लोग माइंड में इस्तेमाल करते हैं उनके आसाब दुरुस्त रहते हैं, याददाश्त ठीक रहती है। जो प्रॉब्लम्स किसी बीमारी में आसाब की आती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो वो होते हैं उसमें ये एड्रेस नहीं करता है कि आसाब को नहीं करता है, नर्व्स को नहीं करता है। अभी बिल्डिंग में केबल है ना, Yes. लाइट वाली वजह से है ना। Yes, ma'am. अगर सर्कुलेशन हवा की चाहिए तो भी तो लाइट चाहिए। हार्ट को चलाना है तो भी आपको करंट चाहिए। Yes. हार्ट को चलाना है तो भी करंट चाहिए, सिग्नल चाहिए। तो मेन रूट नर्व ही हुई ना, एक तरफ खून एक तरफ नर्व, एक वो पजल है। एक पजल भी अपनी जगह से हट गया तो तस्वीर खराब। तो ये नर्व्स को कंट्रोल करता है। इसी तरह आपकी इंफॉर्मेशन को, इम्यूनिटी में जो कॉमन बातें हैं वो यही है कि बीमारी से बचाता है। कॉमन बातें सारे प्रोडक्ट की। कैंसर के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इंफॉर्मेशन को कम करता है, एजिंग के खिलाफ। ये पोटेंसी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है। इन तमाम में ज्यादातर पोटेंसी एजेड लोगों के लिए बेहतरीन है, इनफर्टिलिटी के लोगों के लिए बेहतरीन है, जो लोग कॉर्टिसोल और ऑर्गेनोडर्मा सांस लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है। तो इसके लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपको एनर्जी, परफॉर्मेंस, सर्कुलेशन, डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर करता है। ठीक है, जीरा हर घर में, अब उसके ऊपर भी कोई स्टडी कर रहे हैं। माँ और मेरे को तो ठीक करते था, इन्फ्लेमेशन और पूरी की पूरी बॉडी को साफ भी करता है, शुगर कंट्रोल करता है, कैंसर के खिलाफ, कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ। तो ये वो चीजें खूबसूरती जो हमें पता नहीं थी और साइंस ने अब हमें बताई, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको जानकारी मिल रही है। एक सेकंड मुझे वो गर्मी लग रही, मुझे लग रही है पावर हो गई। अच्छा एक मिनट बैठो। इसका चार्ज खत्म हो जाएगा मैडम। कोई सवाल आपके जहन में हो इन तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से तो बताइए, ताकि मैं आगे जाने से पहले उसको माइक्रोवेव एक और प्रोडक्ट इसको वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट फूड, मैंने आपको कहा ना किचन की जरूरत नहीं है अगर आपको माइक्रोवेव और स्पाइन आपके पास कंप्लीट फूड है, दही मिला लें, दूध मिला लें, ले लें। 23 चीजें हैं इसके अंदर और वो सब उसी तरह से काम करती है। सफाई के लिए, वायरस के खिलाफ, शुगर के खिलाफ, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, बेहतरीन नींबू मदद हर घर में कब्ज के लिए। यानी एक ऐसी चीज है कि जो रखा है तो समझो एक जनरल कर्नल आपने रखा हुआ है, सब चीज उसके अंदर। तो ये तमाम चीजों का जो गुलदस्ता है ना, मैंने तो बस ये थोड़ी सी चीजें टच की, टाइम में मतलब लेट हो गया था। तो इसको अलग अलग पढ़ो, समझो, खाओ, इस्तेमाल करो और पढ़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर कोई सवाल हो तो फिर जी बोले। मेरे को किडनी का प्रॉब्लम है 1.9 किडनी का प्रॉब्लम, स्टोन है, माइक है। नहीं, लेफ्ट साइड का वाला छोटा है ना बचपन से, फिर इधर आया 5 साल हो गया, मतलब हमारा प्रेशर की वजह से पहले 1 था, फिर जाते जाते 1.7 में गया। क्रेटिनिन हाँ, क्या यूरिया की बात करें, क्रेटिनिन की बात करें? किडनी का पॉइंट किडनी फंक्शन का है ना, ब्लड में 2 तरह से टेस्ट होता है, यूरिया, क्रेटिनिन। आप क्रेटिनिन की बात कर रहे हो कि 1.4 है, क्या बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हो? नहीं पॉइंट डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, किडनी फेलियर हो रहा फेल है, हो रहा है। ठीक है। फिर मुल्लो गया रमजान का पहले, अब उधर देखा है डॉक्टर को 1.5 था, फिर इधर आया 1.9 हो गया। तो अभी कोई अभी इस्तेमाल करो। 5 साल 6 साल चल रहा है ऐसा है। ये तो आपको ग़िज़ा में कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रोटीन जा रहा है कसर। आपको प्रोटीन कम करना पड़ेगा ग़िज़ा में। दालें, सब्जियां, गोश्त हटा के चावल और दालें और सब्जी, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर जो प्रोटीन जो जा रहा है वो फिल्टर हो रहा है, वो किडनी को मजीद डैमेज कर रहा है। और किडनी को रिपेयर करना है तो कॉर्डिसेप्स और रेशी, गैनोडर्मा और मोरेंजी और कॉर्डिसेप्स, ये 3 चीजें किडनी को सिक्योर कर सकती हैं।
स्पायरुलिना आप नहीं बहुत ज्यादा ले सकते, 2-3 गोली से ज्यादा, क्योंकि वो फिल्टर हो रहा है, वो प्रोटीन है, वो आपको डैमेज करेगा ज्यादा डोज में। थोड़ी डोज आपकी जुबान से भी हजम हो जाएगी। लेकिन ये 3 चीजें मॉरनजी, ऋषि और आपका कॉर्डिसेप्स, ये रिपेयर करेगा। अगर तो सेल्स अभी इतने डैमेज नहीं है कि वो रिपेयर हो सके, बात सेल इतने डैमेज होते हैं कि वो रिपेयरिंग के काबिल नहीं होते। तो चूंकि ये दवाई नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा। अब जैसे आप 500 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक खाते हो, 24 आवर में आपका बुखार चल जाता है, ठीक है ना, आपको मालूम है कि इतनी डोज इसका काम करेगी। रजाओं का कैसे कह सकते हो? मेरे को सिर्फ प्रेशर का गोली दिया, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल देखिए आपकी जड़ जो है ना, किडनी का जो प्रॉब्लम है ना आपका, ज्यादातर 90% लोगों की किडनी डैमेज होती है 2 बड़ी बीमारियों से, एक शुगर, एक ब्लड प्रेशर। हमारे प्रेशर की वजह से हुआ। ब्लड प्रेशर होता भी कभी कभी किडनी की वजह से है, और कभी कभी ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हो रही है, दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ हो चुका है, उसको वापस रिवर्स करने में हम कितने कामयाब होंगे हमें नहीं मालूम। अभी कितने अर्से से चल रहा है, 5 साल 10 साल से। तो इन हैवी डोज में कॉर्डिसेप्स